Welcome again to my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. My today's lecture will focus on the very important aspect of geotechnical investigation which we all concerned should take care of, whether he is an architect, whether he is a geotechnical engineer, whether he is the executing body, whether he is a civil engineer, whether he is a structural design engineer. Why? Because whenever we decide for the location, the depth and the number of boreholes to be explored for any civil engineering upcoming structure, we have to abide by certain codal provisions. Although in my two previous lectures I have covered about the subject topic कि हम बिल्डिंग्स और बाउंड्री वॉल्स में और ओवरहेड टैंक्स में कैसे डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करते हैं, बट ये मैंने बीच में एक लेक्चर इसलिए डाला है कि अभी मेरा जो प्रीवियस 5th लेक्चर था वो मेरा IS 1892-2021 पे था, जो कि अभी दिसंबर 2021 में ये कोड रिवाइज हुआ है। तो पहले जो हमारा कोड था उसने एक जनरलाइज इनको कर रखा था इस सब्जेक्ट टॉपिक को, अब कि इन्होंने पूरी प्रॉपरली 2 क्लॉज कवर करके उस हेडिंग को अच्छे से कवर करा है। तो हमने ये सोचा कि आप लोगों को इस बात से अवगत करा दें कि कोड ने क्या क्या चीज़ें प्रपोज करी। हालांकि अभी भी काफ़ी स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कोडल प्रोविजंस में उसने बाय नेम या बाय हेडिंग नहीं डिफाइन करें, बट उसको हम लोगों को बड़ी जुडिशियसली आगे खुद डिसाइड करना पड़ेगा इसका बेसिस। आई विल बी relating my topic to the governing clause 5.6.2 and governing clause 5.6.3 of IS 1892-2021. How? This clause says कि for different kind of structures, what should be the location of the borehole when we go to that very particular site for investigation. So it is describing it as for lightly loaded residences, single or double story. At least we must have at least one borehole explored at the center of the proposed structure. But I would say that these are the minimum codal specifications. If we do get anything unwanted at the site, then we must definitely increase the number of boreholes. We should add the number of boreholes. Okay. If it is a single building in an area of 0.4 hectares, the code is saying कि we must explore one borehole at the center and 4 boreholes, one each at 4 corners of the area. What is the third point which is the code is specifying is if any of the planned dimension of the building is greater than 50 meter, we should do the boreholes in grid in which the interdistance between the 2 boreholes, between any 2 boreholes must not be greater than 50 meter, but subject to a condition at least 2 boreholes should be explored in that very structure. The next point, for area, for building covering an area greater than 0.4 hectares and for height of the building less than 50 meters, the boreholes should cover the entire area. Means ये जो हमारा पॉइंट है ये इन तीनों पॉइंट्स के लिए कंसर्न करता है, बट इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि मिनिमम हमें 3 बोरहोल्स हर इंडिपेंडेंट मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर के लिए करना चाहिए। अब एक क्लॉज इन्होंने कोड ने ये भी जोड़ दिया कि फॉर मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइट ग्रेटर देन 50 मीटर minimum 3 boreholes should be explored for that very tower. Then the code is referring to some other linear structures, means जो सीधे स्ट्रेट लाइन में या कर्व लाइन में ऑन द ग्राउंड चल रहे हैं, जैसे कि रोड्स हैं,
रेलवेज है, एम्बैंकमेंट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, टनल्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं। इसमें कोड ये कहता है कि हमें बोरोल्स एट द रेट ऑफ 50 मीटर इंटरवल पे या 500 मीटर इंटरवल पे करना चाहिए, बट ये डिसीजन इंजीनियर इंचार्ज कंसर्न या जो भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो इंजीनियर्स कंसर्न देख रहे हैं उनको वहाँ की प्रोफाइल के बेसिस पे डिसाइड कर लेना चाहिए। कहने मतलब ये है कि इफ़ वी एनकाउंटर एनी मेजर इरेटिक स्टार्टा तो हम ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बोरहोल्स बढ़ा सकते हैं, तो हमारा इंटर डिस्टेंस घट जाएगा। ओके, इंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोरहोल्स हमारा घट जाएगा। यही अगर हमें यूनिफॉर्म स्टार्टा मिल रहा है तो हम नंबर ऑफ बोरहोल्स डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब इंटर स्पेसिंग बिटवीन द बोरहोल्स बढ़ा देंगे। इसके बाद क्लाइंट कोड ने एक सोलर पावर प्लांट का जिक्र करा कि वहाँ भी कम से कम एक बोरहोल 2 से 5 हेक्टेयर की साइट बनाना चाहिए, क्योंकि सोलर पावर प्लांट बहुत बड़े वास्ट एरिया में बनाए जाते हैं। तो वो कहता है कि एटलीस्ट 5 बोरहोल्स हमें हर साइट पे कर देना चाहिए। इसके अलावा बहुत तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ। डिफरेंट इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हैं और ब्रिजेज़ हैं, और ब्रिजेज़ मीन्स हमारे हाईवेज़ में या रेलवेज़ में, तो उन सब के लिए भी क्राइटेरियाज डिफाइंड हैं। तो जब हम ब्रिजेज़ पे जाएंगे तो हम इंडियन रोड्स कांग्रेस का जिक्र करेंगे आप लोगों से जब हम ब्रिजेज़ पे जाएंगे तो अपने आगे आने वाले लेक्चर में। अभी फिलहाल जो कोड ने एक जनरल प्रोविजंस कर दिए हैं इस कोड के तहत, वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब इसी के साथ हमें ये देखना है कि इसके बावजूद हमें इतना एंटिसिपेशन करना है कि वी शुड हैव सफिशिएंट एनफ डाटा कि हम अपनी स्टेप बेयरिंग कैपेसिटी सेटलमेंट कैलकुलेशंस कर लें। अगर कोई इसके अलावा हमारा कोई वीक जोन आता है तो उसको हमें ओवरकम करते हुए नंबर और डेप्थ ऑफ बोरहोल्स बढ़ा लेने चाहिए। आई थिंक गवर्निंग क्लॉज 5.6.3 पे जहाँ कोड शैलो फाउंडेशन का जिक्र करता है, वो कहता है भाई जो भी हमारी किसी ओपन फुटिंग सिंगल डबल स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो भी हमारी ऐसी फुटिंग आ रही हो जो कि लार्जेस्ट साइज ऑफ फुटिंग हो, तो उसका 2 to 3 टाइम्स हमें कवरेज एरिया बीनीथ द प्रपोज्ड फाउंडिंग लेवल इन्वेस्टिगेशन डाटा डेप्थ कवर करना चाहिए। इसके अलावा अब हम किसी मल्टी स्टोरी टावर में जाते हैं तो वहाँ 2 ऑप्शन देखते हैं, या तो हम पाइल पे जाएंगे, राफ्ट पे आएंगे। तो राफ्ट को कोड ने डिफाइन करने के पर्पज से कहा कि एनी डायमेंशन ग्रेटर देन 6 मीटर फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। वैसे राफ्ट कहीं भी हम जाएंगे तो 30 मीटर बाय 20 मीटर है, 30 मीटर बाय 15 मीटर, इस तरीके के डायमेंशन आएंगे। प्लान एरिया पे वो डिपेंड करते हैं बिल्डिंग के, तो वहाँ हम 1 to 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ द राफ्ट, इतनी इन्वेस्टिगेशन डेप्थ बिलो द प्रपोज फाउंडिंग लेवल हमारी कवर होनी चाहिए। अब हम ऐसे ही पाइल फाउंडेशन से जब आते हैं तो पाइल फाउंडेशन की डेप्थ भी हमारी लोड रिक्विजिशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। तो वहाँ भी जो हमारी टो ऑफ द पाइल है, जो फाउंडिंग लेवल ऑफ द पाइल है, उससे उतना तो डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर करना ही करना है हमें, प्लस एटलीस्ट 5 मीटर मोर या 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइल बीनीथ द एंटिसिपेटेड फाउंडिंग लेवल ऑफ द पाइल, रादर टू से द टो ऑफ द पाइल। इतना हमें इन्वेस्टिगेशन डाटा कलेक्ट करना ही चाहिए साइड से। अब अगर हम एम्बैंकमेंट्स में आते हैं तो कोड कहता है कि जो भी एम्बैंकमेंट की हाइट है उसका 1 to 2 टाइम्स हमें इन्वेस्टिगेशन डाटा सॉइल का स्ट्राटा का पता होना चाहिए, इतना हमें पब्लिश करना है। वेल फाउंडेशंस में जनरली क्या होता है कि हमारे ब्रिजेस में हाई फ्लड लेवल लो वाटर लेवल के रेफरेंस में ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो लो वाटर लेवल से हम कुछ वेल डेप्थ डिसाइड करते हैं। कमिंग ओवर नाउ टू द वेल फाउंडेशंस, हम लोगों को ब्रिजेस में क्या है कि LWL लो वाटर लेवल हाई फ्लड लेवल के रेफरेंस में डिसाइड करना होता है। तो हमारी जो एंटिसिपेटेड वेल डायमीटर होता है या वेल फाउंडेशन डेप्थ होती है वो विद रेफरेंस टू LWL लो वाटर लेवल होती है, लो वाटर लेवल। इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों को एक वेल डायमीटर भी डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली कोड का कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा एंटिसिपेटेड टर्मिनेशन लेवल ऑफ द वेल है उससे हमें 1.5 to 2 टाइम्स द वेल डायमीटर स्ट्राटा अवेलेबल होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन डेप्थ का, सो एज टू बी एबल टू फाइनलाइज द रिपोर्ट ऑफ दीज वेरी स्ट्रक्चर्स।
अब हम एक बात कर सकते हैं कि अगर हमारी सॉइल के बीच में रॉक आ जाए और फिर सॉइल शुरू हो जाए, या हम रॉक में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो रॉक के क्राइटेरिया सब एंटायरली डिफर करते हैं। तो ये मैं अपना ये अपना लेक्चर सीरीज में जब मैं रॉक के चैप्टर पे जाऊंगा तो मैं आपको कन्वे करूंगा। बट इस कोड ने हल्का से ये जरूर बताया है कि अगर हमारे पास रॉक एनकाउंटर होता है तो मिनिमम 5 मीटर हमें इन्वेस्टिगेशन डेप्थ रॉक में कर लेनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई विश टू एक्सप्लेन यू इन दिस वेरी लेक्चर ऑफ माइन। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों की ये कोड को समझने की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और बढ़ाएगा। और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।